Hello everyone. In today's 12th Commerce BK lecture, we are in admission chapter. Just check practice problem number 1. This is from page number 161 in your textbook. Vikram and Pradnya. There are two partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2018. ये डेट का बैलेंस शीट हमको दिया हुआ है. In that we have creditor 1,05,000, Vikram का capital, Pradnya का capital, it is equal 75,000 each. Then we have cash, land and building, plant and machinery. Then we have furniture, stock, debtor. They agreed to admit Avni. किसका एडमिशन हो रहा है यहाँ पर? अवनी का हो रहा है. As a partner on 1st April 2018, Avni shall have 1/4 share. कितना शेयर? 1/4 share in future profit. He shall bring. अब यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? It should be she. अवनी, ठीक है. She shall bring 37,500 as her capital and 30,000 as her share of goodwill. ठीक है. तो यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, एक तो कैपिटल 37,500 और दूसरा गुडविल दैट इज 30,000. लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%. 5% लेंगे, यहाँ पर और कुछ नहीं दिया है, तो ये जो 87,000 इस पे कितना आ जाएगा? 5% प्रोविजन. ठीक है. On the sundry debtor, stock to be revalued या valued at 82,500. तो स्टॉक कितना है देखो, ये कितना हो जाएगा? 82,500. So we can say 7,500 has increased. ठीक है. The capital account of all the partner to be adjusted in the new profit sharing ratio and excess amount to be transferred to their loan account. यहाँ पर भी excess amount क्या हो रहा है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है. बहुत ही इजी सम है. ठीक है. Though it is easy, we will do on the practical basis. Start drawing format along with me. So Avni shall have 1/4 share in the future profit. ये first adjustment हमको दिया है. हम start करते हैं capital के transfer से. Capital of Vikram is 75,000. So in the books of Vikram, 75,000. Pradnya 75,000. ठीक है. Do we have any general reserve? No. On the other side, asset cash is 75,000. Sorry, 7,500. तो cash balance हम ले लेते हैं. On the debit side 7,500. ठीक है. Starting with second adjustment, she shall bring 37,000 as her capital. तो capital 37,500 आ रहा है. तो यहाँ पर अवनी के बुक में क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अवनी के कॉलम में क्या लिखेंगे? 37,500. ठीक है. We can mention cash और बैंक अकाउंट. सिमिलरली कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू अवनीश कैपिटल अकाउंट.
हाउ मच 37,500। ठीक है, ये हमने क्या लिया अभी, कैपिटल लिया। एंड देन 30,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। 30,000 गुडविल का शेयर है। एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो हम लिख रहे हैं टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट 30,000, और ये गुडविल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। $30,000 अब ये जो गुडविल है ये किसको मिलना चाहिए, ये ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। सो 30,000 in the ratio of 2:3, विक्रम एंड प्रज्ञा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 30,000 को डिवाइड करके, 30,000 डिवाइड बाय 5 6,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और यहाँ पर 18,000। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर वी विल राइट इन द बुक्स ऑफ विक्रम 12,000 and 18,000। सो गुडविल हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, अभी क्लोज हो जाएगा। विक्रम एंड प्रज्ञा, वी कैन राइट टू विक्रम कैपिटल अकाउंट, amount is 12,000 to Pradnya's capital account, total comes to 30,000। so goodwill will not appear in the balance sheet। ठीक है, done with adjustment number 2। adjustment number 3, land and building to be valued at 45,000 and furniture to be depreciated by 10%। very easy। so land and building आप चेक कीजिए, how much it is, 37,500। तो appreciate हो रहा है, land and building 37,500 and it became 45,000। add appreciation, how much appreciation, 2,500 plus 5,000, total 7,500। correct। similarly furniture was 3,000 and 10% depreciation, so we will write furniture 3,000 and less depreciation at the rate 10%, that is 300, 2,700।
यहाँ पर ये जो एप्रिसिएशन है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएगा. बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,500. and to furniture account. How much? 300 only. Done with adjustment number 3. Now adjustment number देखो 4 नहीं है, एरर आ गया वहां पे. 5th दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंशन्ड at 5% on sundry debtor. 5% है तो डेटर है 87,000. 87,000 less provision you can write, or you can write directly RDD at the rate, what rate is given? 5%, at the rate 5%. So 87,000 calculate करो. Four three five zero 4,350 82,650. ठीक है. RDD 4350 डेबिट में लिख देंगे टू RDD account. How much? 4,350. That's it. 4350 completed with next adjustment. Adjustment number 6. Stock to be valued at 82,500. तो स्टॉक लिखेंगे पहले, और कितना वैल्यू होना चाहिए? 82,500. तो है कितना स्टॉक ऑलरेडी? जस्ट चेक हाउ मच स्टॉक इज देयर. 75,000. So earlier it was 75,000. Now we can see some appreciation, but instead of appreciation we will write increases. ठीक है. तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 7,500. तो स्टॉक बाय स्टॉक अकाउंट 7,500. So completed with 1, 2, 3, 4, 5, 6 all adjustment. Avni shall have 1/4 share in future profits. तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे निकाल रहे हैं. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPSR. ठीक है. क्यों ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें लास्ट में बताया गया है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड. एडजस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. सो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे वो कितने शेयर के लिए आई है? 1/4. ठीक है ना. तो 1 माइनस 1/4. ठीक है. वन माइनस
1/4 इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहाँ पर। पहला कौन है? विक्रम। प्रज्ञा, देन वी हैव अवनी। अच्छा, विक्रम जो है उसका ओल्ड शेयर था 2/5, 2/5। ठीक है, अब उसको शेयर मिलेगा 3/4 में से 2/5। दैट इज 3/5। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन था इक्वल्स टू 2/5 इंटू 3/4 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको टोटल क्या मिलता है? 6/20। ठीक है, सिमिलरली प्रज्ञा का यहाँ पर रेशियो था 3/5, और अब 3/4 में से शेयर करना पड़ेगा। That will give us 9/20. And Avni, for Avni it is very easy. Avni 1/4 शेयर के लिए आई थी। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर में 20 चाहिए, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में 5 से, तो न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा? 5, तो 5/5। So here we will take 5/20. So our ratio is 6:9:5. ठीक है, 6:9:5। अब इसके मुताबिक हमारा जो कैपिटल है उसके बारे में क्या बोल रहे? देखिए लास्ट एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर अवनी जो है वो कितना लेकर के आई? 37,500 एज हर कैपिटल। कैपिटल में 37,500 लेकर के आई। अगर मैं यहाँ पर लिखूं अवनी लेकर के आई है 37,500। ठीक है, कितने यूनिट के लिए लेकर के आई है? 5 यूनिट के लिए, बराबर है। तो 5 यूनिट के लिए 37,500, तो 1 यूनिट के लिए कितना? तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। 37,500 डिवाइड बाय 1, सॉरी डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो क्या आंसर मिलता है? जस्ट चेक, 37,500 डिवाइड बाय 5, 7,500। तो एक यूनिट के लिए 7,500, बराबर। दिस इज फॉर सिंगल यूनिट, 1 यूनिट। तो 9 यूनिट के लिए कितना? 9 यूनिट के लिए हमको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 7,500 इंटू 9, दैट विल गिव अस 67,500। सिमिलरली 7,500 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे इंटू 6, 6 के लिए होगा तो 45,000। तो ये जो आया है, दिस इज व्हाट आवर न्यू कैपिटल। ये इसे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। इतना कैपिटल होना चाहिए। तो ये कैपिटल हम फटाफट कहाँ लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
ठीक है, तो 45,000 विक्रम का, प्रज्ञा का 67,500 एंड अवनी का 37,500. गेटिंग इट एवरीवन? अच्छा, ये जो नया कैपिटल आने के बाद हम क्या करेंगे, अभी सब कुछ क्लोज करेंगे और चेक करेंगे क्या बच रहा है. तो सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कीजिए. आप देखिए क्रेडिट साइड में कितना मिल गया, 15,000 टोटल. डेबिट साइड 15,000 माइनस कर देंगे 4650. 15,000 माइनस 4650, 10,350. 10,350 is the answer. What we will write? We will write to partners कैपिटल अकाउंट. तो इसमें से विक्रम को और दूसरी प्रज्ञा को हम 2:3 के रेशियो में दे देंगे. सो 10,350 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 4140. ठीक है, तो जो भी बैलेंस है रिमेनिंग, $10,350 माइनस 4140, 6210. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10,350, और हमें भी वही मिला. तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. हाउ मच? 4140 एंड 6,210. ठीक है, तो अभी क्लोज करेंगे. अवनी का तो सेम आ गया 37,500. 37,500. नेक्स्ट प्रज्ञा. प्रज्ञा का टोटल क्या है, 99,210. 99,210. और विक्रम का टोटल है 91,140. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, माइनस करके देखेंगे किसने कितना एक्सेस दिया है. तो विक्रम ने काफी ज्यादा एक्सेस दिया है. विक्रम का 91,140 में से माइनस किया जाएगा 45,000. तो जो भी बैलेंस बचता है 46,140, ये कहाँ जाएगा, लोन अकाउंट में. सिमिलरली प्रज्ञा का टोटल है 99,210 माइनस 67,500, 31,710. 31,710. और अवनी का यहाँ पर कोई बैलेंस बचेगा नहीं, तो इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, टू लोन अकाउंट. और यू कैन राइट पार्टनर्स लोन अकाउंट. ठीक है, अच्छा ये तो हमने मार्क कर दिया. अभी कैश अकाउंट का बैलेंस ले लेते हैं. क्या कोई हमने पेमेंट किया है? आंसर इज नो. तो टोटल इज 75,000. और यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 75,000
चलो ये जो कैश का बैलेंस आया आप यहाँ पर लिख दीजिए, कैश एसेट साइड में, कैश और बैंक अकाउंट, क्या अमाउंट है 75,000। ठीक है, अच्छा यहाँ कैपिटल लिख देते हैं विक्रम, देन वी हैव प्रज्ञा, एंड लास्ट व्हाट वी हैव अवनी। तो विक्रम का क्या टोटल आया 45,000, then we have Pradnya 67,500 and Avni 37,500. Take the total 1,50,000. Okay, done till here. Now what is remaining? आप बाकी सारे एसेट देख लीजिए, क्रेडिटर है 1,05,000 का, we will write creditors. $1,05,000 और असेट साइड में जस्ट चेक व्हाट इज लेफ्ट, कैश डन, लैंड एंड बिल्डिंग डन, प्लांट इज हाउ मच 45,000, टेक द टोटल, असेट साइड का टोटल है 3,32,850, समथिंग इज रिमेनिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड, तो लोन अकाउंट हम यहाँ पर पुट करेंगे, लोन अकाउंट देखो कितना है 46,140, ठीक है, लोन अकाउंट, और यू कैन राइट पार्टनर्स लोन अकाउंट विक्रम and Pradnya. So what is the amount? 46,140. And what about Pradnya? 31,710. Okay. So what is the total of loan account? 77,850. And then we have liability side total 3,32,850. $3,32,850. ओके, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, टैली हो गया, यू कैन चेक बैलेंस शीट टोटल ओवर हियर 3,32,850. यहाँ पर जो बैलेंस दिया हुआ है विक्रम का और प्रज्ञा का, दैट इज इनकरेक्ट, उसको आप कैंसिल कर दीजिए. व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर, इट इज द करेक्ट बैलेंस. ओके, so let us start with question number 2. अमलेंदु एंड समीर, कैसा नाम रखा है देखो, अमलेंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. 3:2 का रेशियो है रिस्पेक्टिवली. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017 was as under. तो बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें, सन्ड्री क्रेडिटर अमलेंदुस कैपिटल, समीर्स कैपिटल 60-40 है,
और वही सेम हमें रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। जनरल रिजर्व 20,000 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। On 1st April 2017, they admit Paresh into partnership. Partnership में परेश आ गए, ठीक है। The term being that he shall pay 16,000 as his share of goodwill. तो 16,000 रुपए सिर्फ वो गुडविल का लेकर के आ रहा है। 50% amount of goodwill shall be withdrawn by the old partner. ठीक है ना। तो पहले जब गुडविल आएगा, एंट्री नंबर ए, गुडविल जब आएगा तो आप क्या करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 16,000 to goodwill account 16,000. This will be entry number A. एंट्री नंबर बी, बी क्या हो जाएगा, ये गुडविल पार्टनर्स को जाएगा, ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 और जो पार्टनर है अमलेंदु, अमलेंदु's कैपिटल अकाउंट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, बराबर है। तो 16,000 को 3:2 के रेशियो में आप डिवाइड कीजिए। फॉर अमलेंदु क्या करेंगे, 3/5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 3,200, that means 9,600, ठीक है। एंड रिमेनिंग इट वुड बी 6,400, ठीक है ना, राइट। ये भी हो गया। नेक्स्ट सी वाला जो पार्ट है, जो इन्होंने बोला है हाफ, 50% अमाउंट क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो सी में क्या होगा, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, दैट मीन्स अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख देंगे, गुडविल, नहीं गुडविल नहीं, सॉरी, कैश अकाउंट, कैश में उनको दिया जाएगा 50%। तो 9,000 का, 9,600 का 50% कितना आ जाएगा, 4,800, और 6,400 का 3,200, ठीक है। $8,000। सो ये आपको एंट्री इस तरीके से पास करनी है एडजस्टमेंट नंबर 1 की। एडजस्टमेंट नंबर 2, he shall have to bring 20,000 as his capital for 1/4 share in the future profit। वेरी इजी, आपको मालूम, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, न्यू पार्टनर का नाम क्या है, परेश, टू परेशस कैपिटल अकाउंट, बराबर है। तो कैश आ जाएगा 20,000 का। फॉर द पर्पज ऑफ परेशस एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट असेट वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज। तो असेट का रिवैल्यूएशन आपको पता है, बेनिफिट होगा तो क्रेडिट साइड में पुट करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में पुट करेंगे, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 16,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखिए इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 60,000, दैट मीन्स इंक्रीज्ड, एंड प्लांट एंड मशीनरी 16,000, क्या हो गया यहाँ पर, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन आप लिखेंगे 10,000 का, यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर 4,000। देन वी हैव स्टॉक वैल्यूड एट 20,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक 20,000, furniture 4,000। तो clearly you can see
अगेन फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है और स्टॉक इंक्रीजेस, स्टॉक 4000 से इंक्रीज हुआ, फर्नीचर 4000 से डेप्रिशिएट हुआ। A provision of 5% on debtors would be made for doubtful debt। तो जो हमारा डेटर है उस पे 5% का प्रोविजन आ जाएगा, 24,000, उस पे 5% आप लेस करेंगे, ठीक है। पास दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। तो हमें यहाँ पर क्या पास करना है, जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज वेरी इजी सम, कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मार्क दिस सम एज होमवर्क, ये सम आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड वन, वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है वासु एंड विराज, 3:2 का रेशियो है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, वासु का कैपिटल, विराज का कैपिटल, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, बिल्डिंग। He shall have to bring 60,000 as his capital for 1/4 share in future profit. Value of goodwill of the firm is to be fixed। किसका किसका बात कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल का बात करें, एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। देखो यहां पर क्या बता दिया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। Hari unable to bring the value of goodwill in cash, it is decided to raise the goodwill in the books of the account। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे गुडविल का वैल्यू बताएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहां पर जो गुडविल है ये क्या बता दिया है, सिंपल एवरेज बताया है कि ये 3 साल का टोटल ले लो, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करना है हमको 3। बस उसमें हम लोग को एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड ये यूज नहीं करना है। तो सिर्फ क्या करना है, 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 एंड डिवाइड बाय 3, दैट्स इट। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, सिर्फ 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ले लो एंड दैट विल बी योर गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो जो भी आता है, कितना आता है, 67,500, दिस इज योर आंसर। 67,500 इज गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल है। अब इसके बाद क्या बताया, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब यहां पर अनेबल टू ब्रिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो पैसा नहीं ला पा रहा है। इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो डिसाइड किया गया कि ये जो गुडविल है हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रेज करेंगे। अब यहां पर दो टाइप आ जाते हैं, ठीक है, लेट मी शो यू। सो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था, ठीक है, और उसको टाइप्स में डिवाइड किया था हमने, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो उसमें जो टाइप 1 था, व्हाट वाज टाइप 1, टाइप 1 था व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश and retained। goodwill is brought in cash and retained। तो गुडविल कैश में आया, अभी अभी हमने एंट्री देखा, एंट्री क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये आपकी पहली एंट्री हो जाती है। बी, बी में आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बराबर है। ये टाइप ए हो गया। नाउ टाइप बी, टाइप बी में क्या हो रहा है,
या टाइप 2 आई कैन राइट, ठीक है। टाइप 2 में व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटर्न ऑफ, क्या कर दिया आपने, राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ किया तो ये जो ऊपर की दो एंट्री है ए एंड बी, ए एंड बी विल रिमेन सेम, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। विच वन, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो ए और बी दोनों आपको सेम लिखना है। नया एंट्री क्या आ जाएगा, सी। तो सी में आप क्या लिखेंगे, पार्टनर्स, और वी कैन राइट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप लिख सकते सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां तक हमने पहले देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट नंबर 3, टाइप 3 देखने जा रहे हैं हम। टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 क्या है, व्हेन गुडविल is not brought in cash, that is raised in the books। मतलब क्या हो गया, गुडविल कैश में नहीं आया, ठीक है। और हमने क्या किया, रेज किया एंड रिटेन, और रिटेन किया, बराबर है। तो यहां पर आपको पहले एंट्री क्या करनी पड़ेगी, अब जब गुडविल पहले कैश में आता था तो हमारी पहली एंट्री क्या होती थी, पहली एंट्री होती थी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल कैश में आ ही नहीं रहा है, तो क्या ये पहली एंट्री आएगी, नहीं पहली एंट्री नहीं आएगी, सेकेंड एंट्री विल बिकम फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो यहां पर जब गुडविल आपको क्या करना पड़ रहा है, रेज करना पड़ रहा है, तो आप यहां पर लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी फर्स्ट एंट्री। क्यों ये फर्स्ट एंट्री, क्योंकि कैश में हमारे पास आया नहीं है, ओके। तो यहां पर हमें गुडविल रेस करना है और रिटेन करना है। रिटेन करने का मतलब क्या हो गया, यहां पर राइट ऑफ नहीं हुआ है, गॉट इट। और ऐसे केस में जब गुडविल राइट ऑफ नहीं हुआ है, गुडविल देखो हमारे बुक में एक ही बार आया है ना, तो यहां पर क्या होगा, गुडविल अकाउंट विल अपीयर इन दी बैलेंस शीट एसेट साइड। यहां पर आपका जो गुडविल का अमाउंट है, क्योंकि अकाउंट ओपन हो गया पर क्लोज नहीं हुआ है, तो असेट साइड में वो गुडविल का वैल्यू दिखेगा, शो होगा। तो टाइप 3 ही ऐसा टाइप है जहां पर हमारा जो गुडविल है वो आपको बैलेंस शीट में नजर आता है, ठीक है। और
सिमिलरली अगर हम इसको और आगे लेकर के जाएं टाइप 4 में, टाइप 4, तो टाइप 4 में आप क्या लिखेंगे? टाइप 4 में ये हो जाएगा राइट ऑफ, ठीक है ना। व्हेन गुडविल इज रेज्ड, रेज्ड का मतलब क्या होता है? आपने कैश में नहीं लाया, रेज किया है, ठीक है। गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, ये टाइप 4 हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो ए एंट्री है वो तो सेम है। ए वाली जो एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। ऑन पेज नंबर 132 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक आप देखिए, व्हेन गुडविल, सॉरी, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm, तो यहां पर गुडविल अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा आएगा यहां पर? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में आपको काम करना है, ठीक है। और क्या लिखा है? गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। यही एक ऐसा केस है जिसको मैं बोल रहा हूं टाइप 3, टाइप 3, जहां पर गुडविल आपको एसेट साइड नजर आता है। और अगर राइट ऑफ कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? राइट ऑफ, तो पहला जो ए था वो तो सेम आ जाएगा एज इट इज, गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स, और दूसरा एंट्री क्या आ जाएगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये चेंज हो गया, अभी क्या आ गया? ऑल पार्टनर, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, गुडविल न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्या किया गया? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल रेज किया गया, ठीक है। और सेकेंड एंट्री किसका आ गया? ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अभी इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस चेक द एग्जांपल। सपोज वी हैव हियर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, so this is partners
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पर प्रिज्यूम करते हैं ए बी सी आर दी पार्टनर्स, ए बी एंड सी, और एक ऐसे ही नॉमिनल हम बैलेंस लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एजेंटिव फिगर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 90,000, 60,000 एंड 30,000। ये मैंने क्या किया है, एक अजम्पशन ले लिया है। प्रॉपर है। अच्छा, अब समझिए गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000 का। ये भी क्या है, एज्यूम्ड, हमने ऐसा मान लिया, हमको डायरेक्ट मिल गया 90,000 का क्या है, गुडविल है। ठीक है, और इनका जो रेशियो है किसका, ए और बी का। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है वो हम ले लेते हैं 6:3। 6:3 का मतलब क्या हो गया, 2:1। ठीक है, तो सिंपल हम 2:1 का रेशियो ले लेते हैं इनका। टू इज टू वन। तो यहां पर फर्म का गुडविल है 90,000, और हमें बताया गया कि जो मिस्टर सी हैं, ठीक है ना, मिस्टर सी, ये सी का नया एडमिशन हुआ है। क्या हुआ, सी का न्यू एडमिशन हुआ, और इन्होंने फर्म का गुडविल लाया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम 90,000 को रेज करेंगे। 90,000 को रेज करेंगे कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। सो 90,000 को आप डिवाइड कीजिए 2:1 के रेशियो में। ए को कितना मिलेगा, 60,000, और बी को कितना मिलेगा, 30,000। ठीक है, तो यहां पर अगर ये टाइप 3 है, क्या है, टाइप 3, तो इसके अंदर हम यहां लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 60,000 एंड 30,000। ये बात समझ में, ये पूरे फर्म का गुडविल रेज हुआ, पूरे फर्म का गुडविल रेज हुआ। और अगर ये टाइप 3 है तो 90,000 कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखेगा। ठीक है, चलो अब इसको हम मोल्ड करते हैं। अगर ये टाइप 4 हुआ, क्या हुआ, टाइप 4, तो टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 में राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करते हैं तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। 3:2:1। ठीक है, तो हमारा जो 90,000 का यहां पर गुडविल है उसको हम डिवाइड कर देंगे 3:2:1 में। तो क्या अमाउंट आएगा बोलिए। सो जो सी है, सी का 15,000 आता है। जो बी है, बी को कितना आएगा, 30,000। और जो ए है, ए को कितना आएगा, 45,000। गेटिंग इट। तो यहां पर हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, और here you have to write 45,000, then you can write 30,000, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया टाइप 4, ये देख करके आपको क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आएगा कि पहले तो हमने उसका ए का कैपिटल बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया, 60,000 से। ए को एक हिसाब से हमने 60,000 दिया, और फिर उसका अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 45,000 से। मतलब 60,000 दे के 45,000 कट कर दिया, आया ना। तो मतलब एक्चुअली नेट इफेक्ट कितने का आएगा,
नेट इफेक्ट आएगा 15,000 का। नेट इफेक्ट कितने का आएगा? 15,000 का। यस और नो? सिमिलरली चेक इट कि जो बी है, बी को हमने 30,000 दिया और उसके अकाउंट से 30,000 कट कर लिया, मतलब हमने एक्चुअली बी को कुछ दिया ही नहीं। ठीक है। और सी जो है, सी का जो भी कैपिटल रहा होगा उसमें से हमने 15,000 डिडक्ट कर लिया। तो ये 15,000 सी का कट करके हमने किसको दे दिया? ए को दे दिया। क्यों ए को दे दिया? क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया। किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया। ठीक है ना? गेटिंग इट? पहले जहां पर उसको 2/3 मिलता था, अब उसको कितना मिल रहा है? 3/6, मतलब बहुत ही कम मिल रहा है उसको। गेटिंग इट? यस। सो इनडायरेक्टली व्हाट वी आर टेलिंग अ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को हम क्या बात कर रहे हैं? न्यू पार्टनर को बोल रहे हैं तू कैश नहीं लाएगा ना गुडविल का, तेरे कैपिटल में से काटेंगे, तेरे कैपिटल में से पैसा कट करके हम लोग ले लेंगे। तो ये हमने यहां पर ये किया, उसके कैपिटल में से हमने 15,000 को क्या किया? कट किया, और ये जिसने सेक्रीफाइस किया था उसको दे दिया। गेटिंग इट? तो यही हम काम कर रहे हैं। तो कोई बोल सकता है सर इससे अच्छा एक काम ऐसा करो ना, ये पूरे फर्म का 90,000 गुडविल, ये 90,000 गुडविल रेज मत करो, सिर्फ उसका ही शेयर करो, तो काम इजी हो जाएगा। यस और नो? अगर इसी सम को मुझे करना होता, आप चेक कीजिए, तो अगर हमें दूसरे तरीके से करना है, यहां पर भी ए है, बी है, सी है, ठीक है, जो भी इनका बैलेंस रहा होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ वी आर लीस्ट बॉदर, जो भी बैलेंस रहा होगा, अगर मैं यहां पर फॉर्म के गुडविल की जगह, इंस्टीड ऑफ फॉर्म्स गुडविल, मैं सिर्फ सी का शेयर, है ना, सी का शेयर देखो कितना था उसमें से, सी का शेयर वॉज ओनली 15,000, आया ना? तो अगर यहां पर सम बोलता है कि सिर्फ सी का शेयर रेस करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल रेस ओनली सी शेयर। तो सी का शेयर रेस करना है, तो आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो मैं 15,000 सिर्फ रेस करूंगा, तो इसमें से ही ए और बी को 2:1 के रेशियो में मिलेगा, दैट मीन्स 10,000 एंड 5,000। यस और नो? तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट 10,000 एंड 5,000। ठीक है। और दूसरा एंट्री क्या होगा? एंट्री नंबर बी, एंट्री नंबर बी, मैं ये पैसे सी के अकाउंट से कट करूंगा, सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू गुडविल, कितना? 15,000। तो मैंने इनडायरेक्टली क्या किया? मैंने इनडायरेक्टली सी से पैसा कट किया और वो ए और बी को दे दिया। किसको दे दिया? ए और बी को। गेटिंग इट एवरीवन? तो चाहे आप पूरे फॉर्म का गुडविल निकालो, पूरे फॉर्म का गुडविल निकालेंगे तो आपका एंट्री यहां पर लास्ट में ऑल पार्टनर्स वाला होगा, जो कि ऐसा है। ठीक है। गॉट इट एवरीवन? तो ये जो लिखा हुआ है टाइप 3, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? फॉर्म्स गुडविल।
फॉर्म्स गुडविल। तो आपको यहां पर चेक करना है कि सम ने पूरे फॉर्म का गुडविल रेज करने के लिए बोला है या सिर्फ जो इनकमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, उसका गुडविल रेज करने के लिए बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपके ऊपर है, आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, आप पूरे फर्म का गुडविल रेज करो या इंडिविजुअल गुडविल रेज करो। ठीक है, तो चलो लिखेंगे। ये जो पर्टिकुलर टाइप 3 और टाइप 4 है, ये आप अपने बुक में लिखिए। टाइप 4 नाउ वन मोर ट्रीटमेंट व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब पहले से ना बैलेंस शीट में आपको ओल्ड गुडविल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओल्ड गुडविल। जैसे हमको प्लांट एंड मशीनरी दिया होता है और नीचे उसका रिवैल्यूएशन करने को बोला होता है एडजस्टमेंट में, तो कुछ इसी तरीके से अगर आपको ओल्ड गुडविल दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? इन सच अ केस इफ द गुडविल इज रीवैल्यूड, अगर आपको नीचे रिवैल्यूएशन दिया है, फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में गुडविल दिया 90,000 और नीचे दिया है गुडविल इज रीवैल्यूड टू 1,20,000, मतलब गुडविल क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गया। तो आप उसको नॉर्मल एसेट के जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। मतलब वो जो 30,000 बढ़ गया है वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में डाल दीजिए। ठीक है, या तो एक दूसरा इफेक्ट और दे सकते हैं, अल्टरनेटिव अप्रोच। वो जो 30,000 इंक्रीज हुआ है उस 30,000 को आप क्या कीजिए? पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, the difference between revalued value of the goodwill and its book value is transferred to old partners capital और current account। तो आप old partners या current account में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोनों में से एक जगह आपको ट्रांसफर कर देना है। गेटिंग इट? तो ये भी पर्टिकुलर जो ट्रीटमेंट है ये भी आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक में लिखेंगे। यहां पर देखिए, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब नए पार्टनर ने भी क्या लाया? गुडविल लाया। मतलब पुराना गुडविल भी है और नया पार्टनर भी गुडविल ला रहा है। तो एक काम करो, पुराने वाला जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो। पुराने वाले गुडविल को क्या कर दो? राइट ऑफ कर दो, क्योंकि नया गुडविल आ रहा है तो पुराने गुडविल का मतलब नहीं है। देन इट इज डिजायरेबल टू राइट ऑफ द गुडविल अपीयरिंग इन दी बुक्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आई होप आपको गुडविल का पूरा ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। तो आज जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3, इन द नेक्स्ट एपिसोड हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।